اجمل گروپ آف کمپنیز کے بانی حاجی اجمل علی زندگی کے ابتدائی دور میں ایک کسان تھے۔ ریاست آسام کے ناگاؤں ڈسٹرکٹ کے چھوٹے سے گاؤں ہوجائی میں کاشتکاری کرتے ہوئے ان کی جوانی کا طویل حصہ گزرا۔ ایک معمولی کسان سے لے کر خوشبو کی دنیا کا سب سے مشہور و معتبر برانڈ قائم کرنے تک کا سفر اپنے اندر بہت سی کہانیاں چھپائے ہوئے ہے۔ اپنے ماں باپ، بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے دن بھر مٹی کی تہوں کو کھودنا، جانوروں کے ساتھ تیز دھوپ میں خود بھی کیچڑ میں ہل جوتنا اور پھر تھکن سے چور ہو کر کسی پیڑ کے نیچے بیٹھ کر چند نوالوں سے پیٹ کی آگ بجھانا، یہ سارے مشکل حالات وہ انمول یادیں ہیں جن کے سہارے اجمل گروپ آف کمپنیز کی مضبوط عمارت قائم ہے۔ آج اجمل کا نام ہی پرفیوم انڈسٹری کی پہچان بن چکا ہے۔ اگر عود اور دہن العود کا عالمی پیمانے پہ سب سے بڑا بزنس چلانے کا سہرا اجمل گروپ آف کمپنیز کو ہی جاتا ہے۔ ان کے علاوہ بھی نت نئی خوشبوؤں کی ایجاد، سینکڑوں قسم کے ماڈرن پرفیوم دنیا بھر میں پھیلے اجمل شو رومز کی زینت بنتے ہیں۔ اس کے کچھ برانڈ پچھلے کئی برسوں سے فیفی انٹرنیشنل ایوارڈ جیت کر تاریخ رقم کر رہے ہیں، اور یہ سب ان تلخ وقتوں کی رہین منت ہے جو حاجی اجمل علی نے بتائے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اجمل فیملی نے شروع سے ہی اپنی کمائی اور ترقی میں غریبوں اور بے سہاروں کو کبھی فراموش نہیں کیا۔ ہر کامیابی کے ساتھ ضرورت مندوں کی امداد کا سلسلہ بڑھتا گیا۔ ان کی خدمات کا دائرہ ریاست آسام کے کونے کونے تک پھیلنے لگا، بلکہ مرکز المعارف اور حاجی عبدالمجید میموریل ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر کے آغاز کے ساتھ ہی نارتھ ایسٹ کی 7 سسٹر اسٹیٹ سے یہ کام آگے نکل کر پورے ہندوستان میں پھیل گیا۔ اسی دوران سن 2005 میں ان کاموں میں مزید تیزی لانے کے لیے اجمل کارپوریٹ سوشل ریسپانسبلٹی کے تحت اجمل فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی گئی۔ اپنی شروعات سے ہی اجمل فاؤنڈیشن نے 3 چیزوں پر خصوصی توجہ دی، اور وہ ہیں ماڈرن ایجوکیشن، امپلائمنٹ جنریشن اینڈ ویمن امپاورمنٹ۔ ان تینوں فیلڈ میں بہت کم مدت میں اجمل فاؤنڈیشن نے جو کامیابیاں پائی ہیں وہ قابل رشک ہیں۔ 1983 سے مرکز المعارف کے نام سے سارے کام چل ہی رہے تھے، لیکن جیسے جیسے کاروبار بڑھتا گیا وہاں اس کو محسوس کیا گیا بنیادی طور پر کہ کہیں نہ کہیں اجمل کے نام سے یہ کام ہونے چاہیے اب۔ اور اس کے بعد جب کام ہوتے چلے گئے تو اس میں یہ کیا گیا کہ ایڈوکیشن کو، ہیلتھ کیئر کو، اس قسم کے کچھ ایسے کام ہیں جو رفاہ عام کے، اور تو اس کو اجمل فاؤنڈیشن کے بینر سے کام کیا جائے، اور جو دوسرے کام ہیں ریلیجیس وغیرہ کے ساتھ متعلق ہے ان کو مرکز المعارف کے بینر سے کام کیا جائے۔ مرکز المعارف کے ذریعے پہلے ہی پورے آسام میں انگلش اور آسامی میڈیم اسکولوں کا نیٹ ورک قائم ہو چکا تھا۔ اجمل فاؤنڈیشن نے اس سے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے کالجوں کی تعمیر کا سلسلہ شروع کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اجمل کالج آف آرٹ، سائنس اینڈ کامرس کے نام سے 10 کالجز جاری ہو گئے، اور مزید 10 کالجز آئندہ برسوں میں انشاءاللہ کھل جائیں گے۔ ان کالجوں میں بڑی تعداد میں بچے نہ صرف ایڈمیشن لے رہے ہیں بلکہ چند ہی برسوں میں یہ علاقے کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک پریفرڈ کالج بن چکا ہے۔ ویل کوالیفائڈ فیکلٹی، ماڈرن انفراسٹرکچر، کوالٹی ایجوکیشن ان کالجوں کی خصوصیت ہے۔ اس کے علاوہ لڑکیوں کی ہائر ایجوکیشن کے لیے اجمل فاؤنڈیشن نے مریم اجمل کالج آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا بھی آغاز کیا ہے۔ اس کالج کی وسیع و خوبصورت عمارت سے ایک طرف تو اجمل برادران کی اپنی ماں کے تئیں عقیدت کا اظہار ہوتا ہے، تو دوسری طرف مسلم اور پسماندہ طبقات کی لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے ان کی فکر مندی کا احساس بھی ہوتا ہے۔ وسیع لائبریری، اپ ٹو ڈیٹ لیبارٹریز، کمپیوٹر لیبس، ویل فرنشڈ ہاسٹل، پڑھائی کے علاوہ دیگر ایکٹیویٹیز کے مواقع اس کالج کو پوری اسٹیٹ میں دوسروں سے منفرد بناتے ہیں۔ اس ریزیڈینشیل کالج میں آسام کے مختلف اضلاع سے سینکڑوں لڑکیاں تعلیم حاصل کرنے آتی ہیں۔ ابھی یہ جونیئر کالج لیول تک ہے، لیکن جلد ہی گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن تک کے کورسز یہاں کھولے جائیں گے۔ اجمل گروپ کے عزائم میں یہ بات بہت پہلے سے شامل ہے کہ تعلیم کے اس کاروان کو
मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों के रास्ते एक फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी के मकाम तक पहुंचाना है और इसके लिए रिक्वायर्ड जमीन यानी 60 एकड़ लैंड भी एक्वायर कर ली गई है। हम चाहते हैं कि हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटीज के औरतों को, लड़कियों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेटेड कर दे, क्योंकि अगर माँ एजुकेटेड है तो फैमिली एजुकेटेड होती है। इंशाल्लाह कॉलेजेस बन रहे हैं आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स के, और फिर आस्ते आस्ते अल्लाह ने कहा टेक्निकल कॉलेजेस भी हम चालू करेंगे, इवेंचुअली लीडिंग टू कि भाई हम फाइनली हमारा गोल यूनिवर्सिटी। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को सही मानों में उस एक यूनिवर्सिटी के लिए जितनी ज़मीन चाहिए वो ज़मीन हमको मिल चुकी है। हमने ज़मीन जिस तरीके से भी हमने उसका अरेंज किया है और उसमें छोटे छोटे काम हमने शुरू भी कर दिए। वो तो हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह का ख्वाब था, एक मेडिकल कॉलेज वो अपने ज़माने में देखना चाहते थे, एक यूनिवर्सिटी उनके नाम से हम सब भाई लोग देखना चाहते हैं। रियासत आसाम में गुर्बत और बेरोजगारी की वजह से लोग तालीम से काफ़ी दूर थे। चुनांचे अजमल फाउंडेशन ने लोगों को तालीम से जोड़ने के लिए कई लेवल पर अलग अलग अंदाज के काम किए और अजमल फॉर एजुकेशन एंड एजुकेशन फॉर ऑल का नारा लगाया। सबसे पहले तालीमी अवेयरनेस पैदा करने के लिए 10% लिटरेसी प्रोग्राम के तहत पसमानदा और कच्ची बस्तियों में स्कूलें कायम की। यहाँ गरीब बच्चों को घर घर से लाकर पढ़ाया जा रहा है और इस काम के लिए उन बेरोजगार बच्चियों की खिदमत हासिल की जा रही हैं जो पढ़ाई के बाद अपने परिवार का हाथ बटाना चाहती हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं और ट्यूशन फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए फ्री रेमेडियल क्लासेस का इंतज़ाम भी अजमल फाउंडेशन ने कर रखा है। जो बच्चे किसी वजह से इम्तिहान में फेल होकर ड्रॉप आउट हो जाते हैं, उनको दोबारा तालीम के ट्रैक पे वापस लाने के लिए खास कोचिंग क्लासेस चलाई जाती हैं और बड़ी तादाद में ये बच्चे तालीम की डगर पर दोबारा चल पड़े हैं। इसके साथ ही बच्चों में तालीम से रग़बत पैदा करने के लिए हर साल अजमल नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम मुनक़िद करवाए जाते हैं, जिनमें तीसरी जमात से लेकर ग्रेजुएशन तक हज़ारों बच्चे हिस्सा लेते हैं। इनमें कामयाब बच्चों की हौसला अफजाई के लिए अट्रैक्टिव प्राइजेस भी दिए जाते हैं और ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए अजमल स्कॉलरशिप प्रोग्राम के जरिए फंड भी मुहैया किया जाता है। इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम से हर साल कई 100 बच्चे फ़ायदा उठाते हैं। बहुत से डॉक्टर बन चुके हैं, कई इंजीनियर, आर्किटेक्ट, MBA, टीचर और मुख्तलिफ फील्ड के माहिर बनकर एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसी तरह प्रोफेशनल कोर्सेज में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा के लिए अजमल इंडोवमेंट प्राइज भी हर साल दिया जाता है। मैं अभी जिस मुकाम में पहुंचा हूं उसमें 100% अजमल फाउंडेशन का यहाँ है, क्योंकि अगर फाउंडेशन मुझे हेल्प नहीं करता तो मैं अपना डिग्री कंप्लीट नहीं कर सकता। पहले आप पढ़ाई करती थी? नहीं करते। क्यों नहीं करती थी? थोड़ा तकलीफ था, जब पढ़ाई करने चले तो पिताजी गुजर गए, कैसे पढ़े होंगे। तो फिर पढ़ाई कैसे शुरू हुई आपकी? आप लोग के वजह से पढ़ाई शुरू की। आप लोग नहीं होते तो आज हम कर भी नहीं सकते। पर्टिकुलरली हम लोगों ने देखा है आसाम में गरीबी के लिए बहुत बच्चे ऐसा मेरिटोरियस और टैलेंटेड है लेकिन आगे जाके पढ़ाई नहीं कर पाते। बहुत बच्चे हम लोग ऐसा देखा है जिन लोगों ने मेडिकल में इन लोगों को सीट मिलता है, इंजीनियरिंग में अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में सीट मिलता है और भी सारे टेक्निकल या मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए सीट मिलता है, लेकिन वो लोग एडमिशन फीस नहीं होने से या उसको कंटिन्यू करने के लिए एफोर्ड करने के लिए जो खर्चा आते हैं वो नहीं होने के लिए वो कंटिन्यू कर नहीं पाते। ऐसे बच्चों को हम लोग शॉर्टलिस्ट करके हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं। जो तलबा किसी तरह इम्तिहान तो पास कर जाते हैं मगर उनके अंदर कोई खास काबिलियत नहीं होती, उनके लिए अजमल फाउंडेशन ने ग्रेजुएट ओरिएंटेशन प्रोग्राम जारी कर रखा है, जिसके तहत ऐसे ग्रेजुएट्स को इंग्लिश स्पीकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कंप्यूटर स्किल्स और इंटरव्यू फेस करने के तरीके सिखाए जाते हैं। इन कोशिशों के बहुत उम्दा नताइज बरामद हुए हैं। बहुत सारे बच्चों को इस ट्रेनिंग के बाद अच्छी जगहों पर रोजगार मिले हैं। इसके पैरेलल एक ट्रेनिंग प्रोग्राम और भी चलता है जो इन सर्विस टीचर्स की क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए चलाया जाता है। साथ ही जो नौजवान सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए अजमल फाउंडेशन हमदर्द स्टडी सर्कल दिल्ली के साथ मिलकर फ्री कोचिंग का इंतजाम करती है। अब तक 7 बच्चे इन इम्तिहानात में कामयाब होकर देश की खिदमत कर रहे हैं। हमारे आसाम में वो इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से बच्चों के अंदर वो कमी रह जाती है। अगर वो नौकरियों में जा रहे हैं
तो उनके अंदर वो सलाहियत नहीं होती कि किसी इंटरव्यू को फेस करें। इसलिए उनको स्पोकन इंग्लिश हो, उनके बॉडी लैंग्वेज का मामला है, या हिम्मत से मुकाबले में जाके वो किसी चीज़ का इंटरव्यू दें, इस किस्म की सलाहियतें नहीं होती थी, जिसमें 99% बच्चे हमारे जो है रिजेक्ट हो जाते थे। लेकिन जब से हम लोगों ने ये इदारा कायम किया है, सैकड़ों बच्चे, और अब तो मैं समझता हूँ ARTDC बनने के बाद अब हज़ारों में लड़के जो है वो पूरे हिंदुस्तान में और बैरून मुल्क में नौकरियों के लिए जाने लगे हैं। इसी तरह सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के जरिए माइनॉरिटीज और पिछड़े तबकात के लिए जारी करदा स्कीम स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड प्लेसमेंट के कुल 24 सेंटर्स अजमल फाउंडेशन की निगरानी में चल रहे हैं। इसका रिजल्ट इतना शानदार है कि बहुत सी कंपनियां अजमल फाउंडेशन के सेंटर्स में खुद आकर बच्चों को रिक्रूट करती हैं। अजमल फाउंडेशन आसाम के बाद वेस्ट बंगाल और बिहार जैसी स्टेट्स में भी इस तरह के सेंटर शुरू करने का इरादा रखती है। अजमल फाउंडेशन की जानिब से बहुत से अनएडेड कॉलेजों को बिल्डिंग की तामीर के लिए फंड भी मुहैया कराया जाता है। अब तक 15 ऐसे कॉलेजों को बिल्डिंग फंड दिया जा चुका है। जरूरत के मुताबिक स्कूलों और कॉलेजों में कंप्यूटर भी फ्री में मुहैया किया जाता है। कुल 40 जगहों पर कंप्यूटर की सप्लाई की जा चुकी है। ऐसे टीचर्स जो बरसों से बिना सैलरी के अनएडेड स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, अजमल फाउंडेशन उनकी तनख्वाह का इंतजाम भी करता है। अलावा अजीम, अजमल फाउंडेशन ने कंप्यूटर एज में लोगों को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए पूरे आसाम में 50 से ज्यादा कंप्यूटर सेंटर्स कायम कर रखे हैं। इनमें 300 से ज्यादा लेटेस्ट कंप्यूटर्स इंस्टॉल्ड हैं, जिनसे सैकड़ों मर्द व खवातीन कंप्यूटर एप्लीकेशन के मुख्तलिफ कोर्सेज सीख कर बरसरे रोजगार हैं। जैसे आज बम्बई जैसे जगह में, मद्रास में, आज दिल्ली में, बड़े बड़े जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, उसके अंदर क्लास 3 से बच्चों को कंप्यूटर से जोड़ा जा रहा है। और हमने देखा है पूना में इस किस्म के इदारे हैं और बहुत सी जगहों में। तो हमने उसको एक मॉडल बनाया कि आसाम में जहाँ कंप्यूटर जो है बड़े बड़े क्लासों में गवर्नमेंट जो है कुछ दिखावे के लिए बांट देती है, लेकिन नहीं, हम लोग चाहते हैं कि एकदम शुरू से क्लास 3-4 से ही बच्चों को कंप्यूटर से जोड़ा जाए। अजमल फाउंडेशन ने तालीम के साथ ही फलाही कामों में भी जबरदस्त खिदमात अंजाम दी हैं। नेचुरल कैलामिटीज, बिलखुसूस ब्रह्मपुत्र नदी का तूफान और बारिश से आई बाढ़ आसाम का परमानेंट मसला है। इसके अलावा इंसानी इंतहा पसंदी से भी हजारों लोग मुतासिर होते हैं। इन लोगों के लिए पहले रिलीफ और फिर रिहैबिलिटेशन का काम अजमल फाउंडेशन अंजाम देता है। हालांकि आसाम में बारिश की वजह से अक्सर बाढ़ की सी सिचुएशन रहती है, मगर कुदरती तौर पर पानी में आयरन की मकदार ज्यादा होने की वजह से पानी पीने के काबिल नहीं होता। कुछ ऊपरी इलाकों में आम हालात में भी पानी नहीं मिल पाता। ऐसे लोगों के लिए अजमल फाउंडेशन ने प्योर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम बनाई है, जिसके तहत सैकड़ों ट्यूबवेल और रिंग वेल कायम किए हैं। हेल्थ केयर और सैनिटेशन स्कीम के जरिए लो कॉस्ट टॉयलेट्स बनाए जाते हैं, क्योंकि यही 2 जगह हैं जहां से बीमारियां फैलती हैं। इसी तरह गरीब किसानों के लिए लो कॉस्ट हाउसेस बनाने की स्कीम भी चलाई जा रही है, जिसके तहत बहुत से घर तामीर किए जा चुके हैं। माजूरीन की इमदाद के लिए भी कैंप मुनक़िद करके उनकी ज़रूरत की चीज़ें जैसे ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर, आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स, हियरिंग एड वगैरह मुफ्त फराहम की जाती हैं। इसके अलावा इज्तिमाई शादी का इंतज़ाम भी अजमल फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम होता है, जिसमें हर साल दर्जनों जोड़ों को मुक़द्दस इस दुआजी रिश्ते से मुंसलिक कर दिया जाता है। गाड़ी एक्सीडेंट हुआ